A sheer delight to come here because I remember the days when I was associated with Chaudhry Saab. The first day this minister was announced and I was part of his team and came here. These were only regulars. And thereafter continued my association with this university for a very long time, especially Hamad Saab, Javed Mustard Saab time. I think I was almost in academic council and quality assurance, which was invariably here quite frequently. An occasion to learn a lot of things from here. नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. No, the next panel member Javed Beg sir. Sir, your topic is about conflict, entrepreneurship and its impact on Jammu and Kashmir. Please come on the stage. दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में, खास करके हमारे पड़ोस में एक इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है. 5th Feb जो नाम निहाद सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है. मैं काफी शुक्रगुजार हूँ हक इंसाफ काउंसिल का कि आज मुझे ये मौका यहाँ पे मिला. मेरे दोस्तों के साथ मैं दिल से बात करना चाहूँगा. कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं है. कुछ इंसाइट्स मैंने प्रोफेसर आयमा साहब से अभी नोट डाउन की. कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि बैलेंस कर पाऊंगा. आज के दिन के हवाले से इस इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को, इस ऑगस्ट गैदरिंग को और जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहूंगा ये सब आपस में मुतजाद ना हो. ह्यूमन राइट्स इन साउथ एशिया, ये बेसिकली टॉपिक मिला है मुझे. अब इस टॉपिक को अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जियोपॉलिटिकली, मुझे लगता है पूरी दुनिया के पास फिर एक ही मिसाल बचती है, वो हमारे पड़ोस की एस्टैब्लिशमेंट. आज का ये प्रोग्राम था, इसमें हम साउथ एशिया को डिस्कस करने वाले थे, पावर पॉलिटिक्स को, पब्लिक डिस्कोर्स को, इंस्टीट्यूशनल डायनामिक्स को साउथ एशिया में. आपको पता है जिस तरह से बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में और नेपाल में किस तरह के हालात हैं, तो उनसे हमें सोचने की जरूरत थी. एक्चुअली जो हमारा डिस्कोर्स था, हम डिस्कस जो करना चाह रहे थे, सोचने की जरूरत थी कि ये चीजें हमें कैसे अफेक्ट करती हैं, जम्मू कश्मीर को, इंडिया को कैसे अफेक्ट करती हैं. और दूसरी बात ये थी कि आज के दिन ही जिस तरह के जावेद भाई ने लाइन को टो करते हुए बताया कि प्रोपेगेंडा डे बना के रख दिया है पूरे वर्ल्ड में, पूरी एम्बेसीज में, पूरी दुनिया की, और हम उस प्रोपेगेंडा को डिसऑन करते हैं. वी डोंट बिलीव इन द टेररिज्म, वी डोंट बिलीव इन द इस्लामिक स्टेट और हिंदू स्टेट, वी बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया. So it's an absolute honor for me to be here and always to speak about women empowerment, women laws, and why women empowerment is much important in today's society. Lately, while we talk about the South Asian countries, which include Bangladesh, Pakistan, and various others, there is much number of violence which is faced by the women in that country. Lately, we were watching a video which was circulating on the YouTube or I guess on the Google, that it is a sexual assault which is faced by the women in Bangladesh. However, today's topic is power politics, political discourse, public discourse, and institutional dynamics in South Asia. So what I do is I just disjoint these two concepts, public discourse. Power politics is I'll keep them in one cabinet, and institutional dynamics I'll talk about it later. So I was just thinking what should I speak about? Most of the students here, I think Baba Ghulam Shah University doesn't have a school of social sciences. So I thought let me talk about Antonio Gramsci. He's an Italian philosopher who talks about public discourse, how public discourses are being created, and who are the ones who are creating public discourses. So it is both the politicians and the intellectuals who are creating the public discourse, and there are different institutions through which they reach out to you. So it's not always about coercion that you basically get the consent of people. It is about capturing the minds of people also. So there are different institutions, for instance we have schools, we have colleges, we have media houses, which basically influence your mind and take consent from you. You voluntarily, by choice, you give consent to these ideas which are being floated by somebody else.
सबसे पहले मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी इवेंट में जाकर बोलने के लिए कभी मैंने हामी भरी है, लेकिन चूंकि ये इवेंट हक इंसाफ काउंसिल की तरफ से था और जिसकी क़यादत हमारे जीशान भाई करते हैं, जो कि हमारे इस पिता पीर पंजाब से आते हैं और बीते 3 दिनों से ये नाम पीर पंजाब ही अपने आप में एक सुर्खियां बटोर रहा है। तो पिता पीर पंजाब के नौजवान की हौसला अफजाई करने के लिए शायद पहली मरतबा किसी स्टेज पे आया हूँ। जर्नलिज्म पत्रकारिता अपने आप में आज की तारीख में मीडिया हाउसेस तक ही महदूद नहीं रही है। सबसे लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो सोशल मीडिया जर्नलिज्म का है और सोशल जर्नलिस्ट भी अब कहलाना शुरू कर चुके हैं अपने आप को। काफी जगहों पे आपने देखा होगा कोई भी शख्स अपने पर्सनल अकाउंट से लाइव वीडियो जो है वो टेलीकास्ट करके खुद जर्नलिस्ट प्रोनाउंस कर देता है। लेकिन दिस इज डिजास्टर्स नॉट ओनली फॉर अ सोसाइटी बट फॉर एंटायर नेशन एंड इंडीड फॉर द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज़ ग्लोबलाइजेशन अपने आप में एक अच्छी चीज है, बट दो धारी तलवार जिसका एक नुकसान भी रेंज में आती है, तो हमने मई के पहले हफ्ते में देखा है। हमें लगता था कि राजौरी शहर पाकिस्तान की शरीर रेंज में नहीं आता। चूंकि मैं एक पत्रकार हूँ, एक सहाफी हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं इस चीज को बाखूबी जानता था, क्योंकि हमारा उठना बैठना डिफेंस के लोगों के साथ होता है। तो मैं जानता था कि आजकल का बात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं है और इसीलिए मैंने अपने घर में तैयारी कर रखी थी कि अगर पहलगाम हमले के बाद हालात ऐसे होते हैं तो क्या कुछ करने की जरूरत है। तो इसलिए जिन लोगों को लगता है कि राजौरी शहर ही टारगेट पे था, तो आप लोग शायद थोड़े से गुमान हैं, आप लोग थोड़े से वहम में हैं। ये BGSP यूनिवर्सिटी समेत ये पूरा इलाका पीर पंजाब का ये पाकिस्तान के शरीफ रेंज पे है। तो इसलिए हमें बॉर्डर एरिया होने की वजह से ज्यादा चौकन्ना होकर ज्यादा कौशल के साथ काम करना पड़ता है। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम राजौरी जिला में 122 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ, और इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर के 5 अजला में, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। मिस इन्फॉर्मेशन सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि वो सच की आड़ में सच के साथ फिरोजी हुई गलत इन्फॉर्मेशन है। और आज की तारीख में मिस इन्फॉर्मेशन इज द लेटेस्ट वेपन, जो कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन के एतबार से आपको बताऊं। 2 दिन के बाद एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जो कि पाकिस्तान के किसी प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल का था, और उस वीडियो का कंटेंट ये था, और मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि मैंने वो वीडियो देखी, मेरी भी रूह कांपी। और मैं ये सोच रहा था कि जब कल डॉक्टर राजकुमार थापा साहब की बेटी, उनका बेटा, उनकी धर्मपत्नी, उनके घर के बाकी लोग ये वीडियो देखेंगे, उन पे क्या लिखेंगे। वीडियो में ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तानी दहशतगर्दों का साथ देने वाला एक ऑफिसर जो कि एंटी मुस्लिम था, वो पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में मार गिरा है। अब खुद देखिए, ये मिस इन्फॉर्मेशन का एक पैमाना है जिससे हमें डील करना पड़ रहा है। इस मौका से हक इंसाफ काउंसिल के चेयरमैन जीशान सईद साहब का और हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज आप राजौरी की इस सरजमीन पर इस प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद हैं और आपने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। कि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाए। देखिए, बात सिंपल है, मैं एक चीज कहना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से कहते हैं कि कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आप लोग ये बात मत भूलें, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ और पाकिस्तान ने जो उधर से ऑपरेशन जो किया, उसने भी एक ऑपरेशन का नाम रखा, मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, बैनुल मरसूस जो नाम था। लेकिन आप ये नाम इसलिए रखा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर है तो पाकिस्तान ने जो नाम रखा है, एक बहुत मजबूत दीवार है खड़ी। भाई, किस चीज की दीवार है? आप देखें कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकतें राजौरी पुंछ में की हैं, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। ज़ैन और जोया, 2 मासूम चेहरे, 2 बहन भाई जिन्होंने अभी जिंदगी नहीं देखी थी, जिनका पॉलिटिकल लेवल से या पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी मारा गया और सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया, मुस्लिम एरिया को टारगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव है, ये लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश है। और आज का ये जो प्रोग्राम है, इसका खास तौर पर मकसद ये है कि नौजवानों को जागना है, नौजवानों को गलत नैरेटिव में नहीं फंसना है। ये स्कॉलरली डिस्कोर्स से बातें करनी चाहिए और साथ बातें करनी चाहिए। एस्पिरेशंस लोगों की होती है, ऐसा नहीं कि एस्पिरेशन नहीं होती है। टेररिज्म हवा में नहीं आता है, टेररिज्म मोहिकात होते हैं। अब सवाल ये कि मोहिकात को डील कैसे करें, उसको एस्पिरेशन कहिए या सेपरेटिज्म कहिए या सॉफ्ट सेपरेटिज्म कहिए, मगर एक वाज़ेह फर्क है। लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए डायलॉग की जरूरत है,
डिस्कोर्स की जरूरत है और अकॉर्ड्स और कंप्रोमाइज की जरूरत है, जो कश्मीर में आजमाया गया 75 और कामयाबी से आजमाया गया। सबसे पहला इम्पैक्ट जो टेररिज्म का होता है वो इमेज पर, उस इलाके की इमेज खराब हो जाती है सिक्योरिटी के लिहाज से या बाकी चीजें जो कही गई हैं। तो वो जो इमेज पर पहला अटैक होता है वो हमें देखना है कि उसको कैसे करें। हमारे पास आर्कियोलॉजी है, हमारे पास बुद्धिस्ट हेरिटेज है, हमारे पास जैसे अहमद साहब कह रहे थे हिंदू हेरिटेज, शारदा पीठ एक गलतफहमी में हमेशा करेक्ट करता हूँ, शारदा पीठ सिर्फ एक शारदा मंदिर नहीं, सारा कश्मीर शारदा पीठ था। हर गाँव में लोग थे जो बना रहे थे। अभिनव गुप्त शारदा पीठ का ऐसा था, कोलकाता शारदा पीठ था, बड़ा शारदा पीठ का, ये लोग शहरों में रहते थे। तो ये जो या फारसी की शायरी, फारसी की कैलीग्राफी, आपका क्यूजी और सबसे अफजल चीज आपके हैंडीक्राफ्ट्स, ये चीजें आपका कल्चर है जो ये टूरिज्म का इम्पैक्ट है। अल्लाह का शुक्र है बहुत कम हो गया है। इसको रिकवर करने का जो रिकवरी का प्रोसेस है, उस रिकवरी के प्रोसेस में इन चीज़ों को एक बुनियादी सतून के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आप ये करेंगे तो आप अपने इलाके की इमेज ठीक करेंगे, इमेज ठीक करेंगे टूरिज्म पर उसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। ये बड़ा ज़रूरी है। और आप टूरिज्म के मंफी असरात ठीक करने के लिए जो जो काम करेंगे उसमें सिर्फ आप टूरिज्म की इंडस्ट्री की खिदमत नहीं कर रहे, उससे आप अपने लाइवलीहुड की गारंटी कर रहे हैं, को इम्प्रूव कर रहे हैं।